Good morning, students. Students, today we will study about lesson 55 of your book, which is Science Mixed Bag. Now, we will answer some of the questions based on science. Now, the first question is, born in the 6th century BCE, he was often referred to as the father of plastic surgery. Who was this great dermatologist? Dermatologist किसको कहते हैं? जो स्किन से रिलेटेड डिजीजेस को स्टडी करता है. And the name of this person is Sushruta. Now he is considered the father of plastic surgery. He is an ancient Indian physician. वो एक एंशियंट इंडियन फिजिशियन है. एंड हिज बुक सुश्रुता संहिता इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद. आयुर्वेद की जो शुरुआत है वो सुश्रुता की बुक सुश्रुता संहिता नाम की है, उससे शुरुआत हुई है, ये माना जाता है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज सराउंडेड बाय amniotic fluid? Now, an unborn baby is surrounded by amniotic fluid. Now, amniotic fluid is a protective liquid which provides a cushion to the unborn baby in its mother's womb. ये वो लिक्विड है जो एक बच्चे को जो अपने माँ के गर्भ में है उसको प्रोटेक्शन देता है. इस लिक्विड को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं. इट प्रोवाइड्स द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बायोकेमिकल्स एंड वाटर बिटवीन द मदर एंड द अनबॉर्न बेबी. अनबॉर्न बेबी को जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और खाने पीने की जो चीज़ें उसको चाहिए होती है वो ये एमनियोटिक एसिड अनबॉर्न बेबी को मदर के साथ एक्सचेंज करने में ये लिक्विड हेल्पफुल है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम? It is small intestine. Small intestine is made up of duodenum, jejunum and ileum. Next one, what common antiseptic is obtained from seaweed? Now the antiseptic which we get from seaweed is iodine. Now the fifth question, which part of the human body comprises 26 bones, 33 joints, 107 ligaments and 19 muscles and tendons? Now, our foot comprises of all these things. मतलब हमारे शरीर में फुट में होते हैं 26 bones, 33 joints, 107 ligaments and 19 muscles and tendons. Next, the sixth one, what is the word used to describe a packet of data sent by an internet server to a browser and used to identify the user or track their access to the server? Now, the answer is cookie. Next one, what does an oncologist specialize in? Now, an oncologist, he specializes in the treatment of cancer, and the person who studies about cancer is called an oncologist, and the science is known as oncology. What is a mixture of two insoluble mixtures called? It is called
emulsion. Which two precious metals are the constituents of the alloy electrum? It is gold and silver. What is the name of the ethical oath that a medical student traditionally takes on becoming a doctor? Ethical का मतलब होता है moral principles. Ethics का मतलब जो हमारे moral values होते हैं वो. अब एक मेडिकल स्टूडेंट को when he becomes a doctor, he has to take an oath. उसको एक शपथ लेनी पड़ती है, एक कसम खानी पड़ती है कि मैं अपने मेडिकल लाइन में मैं अपने पेशेंट्स की पूरी ईमानदारी से उसकी चिकित्सा करूँगा. What is this ethical oath called? It is called Hippocratic Oath. Hippocratic Oath. This was first given in Greek text. It is to swear the healing gods. जो देवताओं की पूजा की जाती है उनकी कसम खाई जाती है कि I am going to protect my patient at all cost. Next one. Which anesthetic is obtained by healing alcohol and sulfuric acid? Now, the name of this anesthetic is ether. Ether is an organic compound. Next one. What is unique about the mandible in relation to the other bones in the human skull? Now, what is this mandible? Mandible is the largest bone in the human skull. जो हमारा ये वाला पोर्शन है जॉ तक का, स्कल से लेकर के इस पोर्शन को मैंडिबल कहलाता है. Now the unique feature is that it is the only bone in the skull that moves. हमारे जॉ तक का है, तुम अपने दांतों से चबा सकते हो. हमारे दांत भी जो लोअर जॉ है that is also connected with mandible bone. वो भी उसका कनेक्टेड नहीं है, वो उसका पार्ट ही है. It holds the lower teeth in place and forms the lower jawline. हेड से लेके लोअर जॉलाइन तक के हिस्से को मैंडिबल बोन कहते हैं. और इसकी खासियत है, यूनिक फीचर ये है कि इट कैन मूव. इट इज द ओनली बोन इन द स्कल दैट मूव्स. नेक्स्ट वन. If the domain name extension of India is .in, which country is .za? Now it stands for South Africa, which is Zwing Africa. Next one. Which part of the human body is made up of 7 pairs of true and 5 pairs of false? Now this part is called rib cage. Now, true pairs are connected to the sternum, while false pairs are not connected to the sternum. And now, what is the sternum? It is the midline bone of the chest. Chest के बीच में जो bone है, उसका नाम sternum है. और जो true bones pairs हैं, वो sternum के साथ जुड़े हुए हैं, और जो false हैं, वो sternum के साथ नहीं जुड़े हुए हैं. Next, laser is actually an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation. मतलब लेजर का इन्होंने फुल फॉर्म दे रखा है. Laser has several applications. It is used in eye surgery, for cutting steel, carrying signals along optical fibers, and reading data from barcodes and CDs. अब लेजर का यूजेस बता रखा है कि दे आर यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस. नाउ वी कम टू लेसन नंबर 56, which is mental exercise. Now children, in this exercise the first question given is, a school hallway has a long row of lockers. एक स्कूल में एक हॉल है जिसमें बहुत सारे लॉकर्स बने हुए हैं.
locker contains a package of chewing gum. जो सिक्स्थ लॉकर है, जब हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 करके सिक्स्थ वाले में च्युइंग गम है. एट्थ लॉकर कंटेन्स अ हॉकी स्टिक. एट्थ वाले पे हॉकी स्टिक. एंड एवरी नाइन्थ लॉकर कंटेन्स अ मिरर. और नाइन्थ लॉकर पे मिरर है. विच इज द फर्स्ट लॉकर टू कंटेन ऑल द थ्री आइटम्स. अब कौन सा लॉकर है जिसमें ये तीनों चीजें मिल जाएंगी. च्युइंग गम भी होगा, हॉकी स्टिक भी होगी और मिरर भी होगा. इसके लिए हमें सिंपल इसका एलसीएम लेना है. सिक्स्थ लॉकर, एट्थ लॉकर एंड नाइन्थ लॉकर. तो एलसीएम लेने पर हमें 72 आंसर निकलता है. एलसीएम मैंने निकाल रखा है. जो आंसर निकला 72, तो 72 वाला जो लॉकर है उसमें तीनों चीजें मिलेंगी. नेक्स्ट वन. It is the first day of school. Your teacher suggested that it would be a good idea for each child to meet every other student in the class by introducing themselves and shaking hands. टीचर ने कहा कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तुम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करोगे, एक दूसरे को अपना परिचय बता करके और उनके साथ हैंडशेक करके. इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी टोटल हैंडशेक्स विल हैपन. अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो कितनी बार हैंडशेक होगा उस क्लास में. और एक बच्चा दूसरे के साथ एक ही बार हैंडशेक करेगा. तो जो फर्स्ट बच्चा है जब उसने हैंडशेक किया तो उसने 19 लोगों के साथ किया. उसके बाद जब सेकंड बच्चे ने किया तब वो फर्स्ट के साथ नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ पहले ही हो चुका है, तो वो बाकी 18 के साथ करेगा. इसी तरह से जब थर्ड वाला बच्चा करेगा वो 1 और 2 के साथ नहीं करेगा क्योंकि उनके साथ उसका हो चुका है हैंडशेक और इंट्रोडक्शन. अब वो बाकी 17 के साथ करेगा. 20 के बाद वो अपना एक हो गया और जिन दोनों के साथ उसका पहले वो हैंडशेक हो चुका है उनसे वो नहीं करेगा. तो 17 बच गए तो 17 के साथ करेगा. इस तरह से पहला वाला 19 के साथ, दूसरा वाला 18 के साथ और तीसरा वाला 17 के साथ, फोर्थ वाला 16 के साथ, फिफ्थ बच्चा 15 बच्चों के साथ करेगा और लास्ट वाला करेगा ही नहीं. और जब हम इसको टोटल करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 190. इसका मतलब उस क्लास में टोटल 190 बार हैंडशेक्स होंगी. आप टोटल करके देखिए 18, 19, 18, 17 को 1 तक ले जा करके आप देखेंगे कि 190 टोटल है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. ए फार्मर डाइज and leaves his land to be equally divided amongst his wife and 7 children. एक किसान की मृत्यु हो जाती है और उसने अपना लैंड ये वो बता करके गया, लिख के गया कि उसकी वाइफ और 7 बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली द लैंड इज एल शेप्ड. अब ये जो लैंड है वो एल शेप का है. कैन यू हेल्प हिज फैमिली सेटल द लैंड डिस्प्यूट. अब ये एल शेप का लैंड होने से उसको हम कैसे इन 8 लोगों में बांटेंगे. 8 लोग कौन हो गए? एक उसकी वाइफ, दूसरे 7 जो है उसके बच्चे, टोटल हमारा 8 हो गया. अब ये एल शेप के लैंड को हमें 8 इक्वल पोर्शंस में बांटना है. तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल डिवाइड दिस लैंड इनटू रेक्टेंगल. अब एल शेप के इसको हम इधर से लाइन लगा करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं और इसको एक बना सकते हैं. इन दोनों का हम एरिया टोटल कर लेंगे. हम इसको ऐसे भी ले जा सकते थे, मतलब एक रेक्टेंगल ऐसे और एक रेक्टेंगल ऐसे, इसका भी एरिया निकल सकता था, वो भी सेम यही आंसर देता. अब इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करने के बाद उसको टोटल कर लेंगे एंड देन वी विल बी डिवाइडिंग द टोटल एरिया बाय 8 बिकॉज देयर आर टोटल 8 पर्सन्स. एंड देन जो डिवाइड करके आएगा वो इक्वल होगा सबके लिए
and then distribute the land equally among the 8 persons. Hopefully you are understanding this question. Next question. Now the fourth question, children. Here it is written, here is an interesting puzzle given to us by none other than Lewis Carroll. Draw the figure below without lifting your pencil from the paper and without crossing your own path. मतलब तुम्हें अपना पेंसिल बिना उठाए तुमको एक पाथ बनाना है. ये किसी भी शेप में हो सकता है. तो मैंने ये बना दिया. तुम अपने हिसाब से सर्कल की तरह भी बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, बट यू विल नॉट टच द लास्ट पॉइंट एंड विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल यू कैन ड्रॉ एनी फिगर. नेक्स्ट वन, 10 बुक्स ऑफ द सेम सीरीज, एक ही सीरीज के 10 किताबें हैं, आर प्लेस्ड स्टैंडिंग साइड बाय साइड. 10 किताबों को एक ही सीरीज की, एक ही चीज की है वो, उसको साइड बाय साइड रखा हुआ है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऑन अ शेल्फ. ईच बुक इज 2 इंचेस थिक. एक शेल्फ में रखा हुआ है और एक हर किताब जो है एक ही सीरीज की है, इसलिए सब 2 इंच मोटी है. ठीक है. हाउ फार इज द फ्रंट कवर ऑफ द सेकेंड बुक फ्रॉम द लास्ट कवर ऑफ द 9th बुक. अब जब बुक्स को हम रखते हैं तो उसका बुक का जो नाम वाला पोर्शन है, जहाँ पे कि तुमने लाइब्रेरी में देखा होगा, ये नाम वाले पोर्शन को हम बाहर की तरफ रखते हैं. तो फ्रंट हमारा जाएगा इस साइड, ये बैक है, ये फ्रंट है. अब यहाँ पे जब हम इसको प्लेस करेंगे तो हमें काउंटिंग करना है 2. ये कहा गया है फ्रंट कवर ऑफ द सेकेंड बुक. फ्रंट कवर जो है इस साइड है सेकेंड बुक के, टू द 9th लास्ट कवर ऑफ द 9th बुक, यहाँ तक. तो हमारे पास ये 6 बुक्स आई गिनती में. टोटल बुक्स हमारी जो आई 6 है. तो इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है. तो जब ये 2 इंचेस लेंगे तो 6 into 2 it gives you 12 inches. Now the next question. It is a very interesting question. What is unusual about the following words? इन words में unusual क्या है? Asses, dresser, potato, banana, grammar, revive, uneven. इनका अगर आप फर्स्ट लेटर उठा लो और लास्ट में रख दो, फिर भी वो सेम बनेगा. इसको उठा करके यहाँ रख दो, फिर भी हम ये एसेस ही पढ़ेंगे. इधर अगर हमने ए डाल दिया, उसी तरह से इस डी को उठा के हम इधर डाल दें तो भी ड्रेसर ही बनेगा. पोटैटो, अगेन पी को इधर से पढ़ो तुम, पी लगा करके पोटैटो बनेगा. बनाना, यहाँ से ऊपर पी लगा के पढ़ो उल्टी तरफ से, तो वो भी बनाना ही बनेगा. अगेन ग्रामर को भी जी को लास्ट में रख के पढ़ो तो भी अगेन सेम स्पेलिंग ग्रामर बनेगी. आर को लास्ट में रख के पढ़ो फिर से रिवाइव ही बनेगा. अनइवन का यू लास्ट में रख के पढ़ो, अनइवन ही बनेगा. दिस इज अनयूजुअल अबाउट दीज वर्ड्स. नेक्स्ट वन, हाउ कैन यू मेजर 1 लीटर ऑफ जूस आउट ऑफ अ बैरल. अब एक बैरल में से 1 लीटर जूस को मेजर करना है. इफ ऑल यू हैव अवेलेबल आर अ 3 लीटर एंड अ 5 लीटर पिचर. तुम्हारे पास एक 3 लीटर का घड़ा है, पिचर इज घड़ा, और एक 5 लीटर का घड़ा है, तो तुम उससे 1 लीटर जूस कैसे मेजर करोगे? सबसे पहले तुम क्या करोगे, 3 लीटर पिचर को भर दोगे. 3 लीटर जूस उसमें आ गया, उसको पोर करोगे 5 लीटर वाले में. 5 लीटर वाले में रख दिया 3 लीटर को, फिर से दोबारा तुम 3 लीटर वाले पिक्चर को भरोगे, फिर उसको दोबारा तुम 5 लीटर वाले में भर दोगे. अब 3 लीटर में से तुम्हारा उसमें सिर्फ 2 लीटर ही जाएगा क्योंकि वो 5 लीटर का पिक्चर है. तो जो बच गया वो 1 लीटर. तो व्हाट इज लेफ्ट? यू आर लेफ्ट विथ 1 लीटर जूस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Now children, the eighth question is divide 110 into two parts so that one will be 150% of the other. फर्स्ट पार्ट को हमने x मान लिया, सेकेंड पार्ट जो है इट इज 150% ऑफ द अदर, x का 150% है, तो हमारा ये 150% ऑफ x इज 3/2x। अब इसको जब हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया, x प्लस 3/2x इज इक्वल टू 110। इफ यू सॉल्व दिस वी गेट x एज 44, और जब हम x प्लस दूसरा नंबर हमारा 3/2x है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 66 मिलता है। तो दोनों मिला के 44 प्लस 66 वी गेट 110। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ए मदर एंड फादर हैव 6 सन्स। मदर एक है, फादर एक है, 6 सन्स है, एंड ईच सन हैज 1 सिस्टर। सारे सन्स की एक ही बहन है। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? हाउ मेनी पीपल आर इन दैट family? There are 9 members in that family. Now the last question. My father is 14 inch taller than my sister. Father जो है वो 14 inch taller than my sister है. The difference between father and his brother is 2 in less than between his brother and my sister. My father is 6 feet 6 inch. How tall are my uncle and sister? फादर की हाइट ये है, अंकल की हाइट जो है वो शॉर्ट है 2 इंचेस से, तो हमने माइनस करके हमें 6 फीट 4 इंच मिल गया। फिर सिस्टर जो है वो 14 इंच शॉर्टर दैन फादर है, तो 6 फीट 6 इंचेस से जब हम 14 इंचेस को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 5 फीट 4 inches. So we get the answer. Now children, all of you will do these questions in your book and send me your work. Thank you children.